کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجے. اب جب فرشتے آ گئے تو اب اللہ کا فیصلہ آ گیا. اب اس فیصلے سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو قوم لوط پر اللہ کا عذاب اتر گیا. ہم لوگ پوری واقعات پیچھے دیکھ چکے ہیں. قوم عاد، اس طریقے سے کئی ایسے واقعات. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اللہ اپنے فرشتے کو بھیجیں گے، جاؤ یہ کام کر ڈالو، ختم. ہماری موت، ہم تمام انسانوں کو اگر دیکھا جائے، ہم تمام انسانوں کی موت، فرشتے تو آتے ہیں، فرشتے تو آئیں گے. اب جب موت کے فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے، جب آ ہی جائیں گے تو کیا وہ بغیر روح قبض کیے واپس لوٹ جائیں گے؟ کیا ہوا ہے ممکن؟ اللہ یہاں پر یہی اللہ یہاں پہ کہتا ہے ہم اپنے فرشتے کو حق کے ہی ساتھ اتارتے ہیں، اور اس وقت پر مہلت دیے گئے نہیں دیتے. یعنی کہ پھر ان کو ہم مہلت نہیں دیتے کہ وہاں جا کر کے پھر تم دیکھ کر کے چلے آؤ یا بتا کے چلے آؤ یا لوٹ کر کے چلے آؤ. نہیں، پھر تو ہم جس مقصد کے ساتھ تم کو بھیج رہے ہیں تم اس کو کر گزر کر کے لوٹو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے ترنت جواب دیا. اب یہ جواب سن کر کے کفار قریش کو غور کرنا چاہیے کہ ہاں یہ بات تو سچ ہے. آج کے ہم کو انسان، آج ہمارے معاشرے میں بھی جو بھی لوگ ہیں، میں کہتا ہوں میری بات کو جو بھی لوگ سن رہا ہے، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، یہ اس کے لیے بھی میسج ہے. یہ اس کے لیے بھی میسج. اگر وہ چیلنج کی بات کوئی کرتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم کو بات میری ایسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم بھیجیں گے فرشتے کو. دیکھنا جب تمہارا موت کا وقت آئے گا میرے فرشتے جائیں گے تمہارا روح قبض کرنے، تو تمہیں حق سمجھ میں آ جائے گا. اس وقت تمہیں حق بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن تمہارے پاس پھر مہلت نہیں ہوگی. ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی سمجھ لو، نہیں تو پھر بعد موقع نہیں ملے گا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بولتے ہیں ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ اور الحمدللہ اور بے شک اور سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر وہ بات کہہ دی. کیا کہہ دی؟ کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا، ہم نے ہی اس قرآن کو تم تک پہنچایا، ہم نے ہی اس قرآن میں ساری باتیں تمہارے سامنے کہہ دی. اور یاد رکھو اب ہم اس قرآن کے محافظ ہیں، تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات کیوں کہنی پڑی؟ اس لیے کہنی پڑی کیونکہ اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب اتار چکے تھے. اس سے پہلے بھی 3 آسمانی کتابیں اتری، توریت، زبور، انجیل. اور آپ دیکھیے، اب ہم بات کریں گے آج کے دور کے مسلمانوں، اور جو بھی جو ہے کہ جو مسلمان ہیں اور جو نہیں بھی ہیں ان تمام سب کے لیے میں بات کروں گا. سنو اے لوگوں، سنو، میں کہتا ہوں سنو، غور سے سنو، اس آیت پر ذرا توجہ دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن میں نے نازل کی اور اسی کا میں محافظ ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. اس سے پہلے کی 3 کتابیں اتاری گئیں، توریت، زبور، انجیل، ہم سب جانتے ہیں. اب سنیے، توریت اتاری گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. ٹھیک ہے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت اتاری گئی. اب ابھی محض تقریباً 400 سے 500 سال کا وقفہ گزرا تھا. سنیے گا کتنا وقت؟ 400 سے 500 سال کا وقت گزرا. اور یہ بنی اسرائیل جو تھے اس میں کئی طریقے کا بدلاؤ کرنا شروع کر دیا. اب بھائی صاحب بنی اسرائیل کے بارے میں بھی سن لیجیے. بنی اسرائیل جو ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے نکالا، وہ فرعون جو ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، جو بھی ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیتا تھا. کتنے بچے کو قتل کر ڈالا، اور ان کی بیٹیوں کو اپنے ہاں غلام اور داسی اور جو ہے کہ کام کرنے والی بنا کے رکھتا تھا. اور خود ان سے جو ہے کہ ان کے ساتھ اتنا ظلمانہ رویہ تھا جو کہ کہا نہیں جا سکتا. تو اس فرعون کے چنگل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلوا کر کے ان کو لائے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے کہ معجزہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے دیکھا بھی، کیسے نکالے، کیسے فرعون کا کر دی. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، پوری بات کو نہیں بتا سکتا، شارٹ میں بتا رہا ہوں. یہ بنی اسرائیل بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائی 3 سال بڑے حضرت ہارون علیہ السلام
कि फौत हो गई तो उनके ऊपर इल्जाम लगा बैठे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। देखिए ये बनी इस्राइल की कैसी इनकी सिचुएशन थी कि आपने जो है कि इनको कत्ल कर डाला। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उनको कहा कि तुम जाओ कि कब्र पर जाओ, जाकर करके तुम आवाज दो। हजरत हारून अलैहिस्सलाम वो खुद कब्र से निकल करके बयान देंगे, अपनी हक बात बताएं। और फिर उन्होंने हक बात बताई, वैसा कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने बताया कि नहीं मैं तो अपनी मौत अपने मर्ज हालत में मर्ज में मरा। अब बताइए वो बनी इस्राइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे इल्जाम। अब अभी अभी और इससे पहले का भी सुन लीजिए, जब कोई दूर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए 40 दिन के लिए, तो ये क्या किए कि सामरी के बहकावे में आ करके बछड़ा की इबादत करना शुरू कर दिया। अब देख लीजिए फिर ये हारून अलैहिस्सलाम का मामला। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके सामने सारी बातें बता दी और सारी चीजें सामने खुल के आ गई, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनमें से लोगों को लेकर 12 लोगों को लेकर गए और जाकर के जो है कि फिर माफी अल्लाह से माफी मंगवाई, तब जाकर बनी इस्राइल को अल्लाह ने माफ किया। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर क्या हुआ मामला, फिर जो है कि जब बात यह हुई कि भाई फलां शहर में जाना है और फलां शहर में जाकर करके हमको जो है कि वहां पर दाखिल होना है, तो ये बनी इस्राइल कहेंगे नहीं 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 वहां पर तो बड़ा जालिम बादशाह रहता, हम नहीं जाएंगे, आप जाएं आपका खुदा जाए। अब देखिए कैसी कैसी बनी इस्राइल। वहां भी अल्लाह ने फिर उनको वादी ती में जो है वादी ती में 40 साल तक कैद रखा। मतलब ऐसा कैद कि ना सलाखें थी, ना बाउंड्री थी, ना कोई वॉल था। अल्लाह ने उनको उसी वादी में ऐसा कैद कर दिया कि वो जहां से सुबह को चलना शुरू करते आखिर में रात में वहीं पहुंच जाते। 40 साल हो गया, एक यानी कि एक नस्ल खत्म हो गई। फिर आपके हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का दौरा। अच्छा हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद उनको जो है कि बना के उनकी भी फौत हो गई थी। तकरीबन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 120 या 130 साल की उम्र में उन्होंने पर्दा लिया। तो बहरहाल अब जो है कि जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी जो है कि कहने लगे कि ये तो नहायत ही कमज़ोर है और ऐसा है और वैसा है, इन्हीं को क्यों नबी बनाया। अब देखिए लोगों के बारे में मैं बता रहा हूँ, बात लंबी होगी ज़रा, लेकिन थोड़ा सा बात को समझने की हमने कोशिश करनी है। बनी इस्राइल जो कि बहरहाल लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोल के कहते और फाइनली जो है कि हजरत यूशा बिन नून जो है कि वो नबी रहे। और उनके दौर में फिर वो 40 साल का जो वक्त ख़त्म हुआ और फिर उन्होंने जो है कि उस शहर में यानी कि फ़िलिस्तीन शहर में जो है कि जाने का इरादा किया। और फिर वहाँ पर जो है कि आपके हजरत तालूत अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को नबूवत दी और हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने जो कि उनको अपना सिपहसालार बना करके उस शहर में भेजा। शहर था फ़िलिस्तीन, जहाँ पर मलाइका कौम, वो क्या नाम था, अमालिका की कौम थी। और उस कौम का जो एक बादशाह जो था जालूत, बड़ा जो है कि कह लिया जाए कि ताकतवर, जाबिर, बड़ा गुरूर उसके अंदर, बड़ा जालिम भी था, ताकतवर भी था, बड़ी फौज थी। बहरहाल लंबी चौड़ी कहानी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो उनको गुलेर से मारा तो ख़त्म हो गया वो जालूत। तो बहरहाल तो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के बाद फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए। तो अभी ये वक़्त लंबा वक़्त जो है कि बहुत ज़्यादा लंबा वक़्त नहीं गुजरा, तकरीबन 400 से 500 का वक़्त गुजरा था। अब इस दौर में ही बनी इस्राइल के अंदर इतना ज़्यादा जो है कि गड़बड़ी आ गई, इतनी गड़बड़ी आ गई, कुछ गड़बड़ियाँ तो जो है कि कुरान में भी पेश किया गया है ना, और हदीस से भी मालूम होता है कि आखिर फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह को ज़बूर उतारनी पड़ी। यानी कि अभी तौरात का उतारे हुए 500, अगर हम ज़्यादा से भी ज़्यादा मानते हैं तो 500, अदरवाइज 400 होता है, 500 वक़्त गुजरा था, साल गुजरा था कि फिर ज़बूर उतारनी पड़ी। ठीक है ना। अच्छा अब ज़बूर होती, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ये जो बनी इस्राइल कौम थी, अब इसमें 2 फिरका बन गए, 2 बंटवारा शुरू हो गया। ठीक है ना। और अभी जो है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुजरे, अभी उनका भी दौर जो गुजरा, उसके बाद का जो दौर तकरीबन 500 या बाद वक़्त 600 साल कहा जाता है, वो गुजरा। ठीक है ना। और इसमें बहुत इतनी गड़बड़ी आई कि अल्लाह ने ज़बूर को उठा लिया और ज़बूर को मानने वाले सबके सब खत्म हो गए। इधर बनी इस्राइल में इतना ज़्यादा नाइत्तेफ़ाक़ी, फ़िरका परस्ती और इतना खुद को उन्होंने बांट दिया खुद में है कि फिर वही वक़्त आया जब बख्त नसर बादशाह जो था
वो बख्त नसर जो है कि हमला किया, समझे ना, और हमला कर करके वो शहर जिस पे बनी इसराइल हुकूमत करता था बाकायदा, अल्लाह ने उनको हुक्मरान बना दिया था। यानी कि आपका जो यूसा बिन नून अलैहिस्सलाम के ने जब बनी इसराइल को लेके आगे बढ़े, उस शहर में फिलिस्तीन में दाखिल हुए और हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने जालूत का ख़त्म किया के सिपा सलारी में, आपका हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसको जालूत को ख़त्म किया, तो उसके बाद फिर बनी इसराइल बाकायदा पूरे फिलिस्तीन पर जो है कि उनकी हुकूमत हो गई जनाब। अब आप कहेंगे कि भाई फिलिस्तीन से ये तो मुसलमान का पहले से मामला था, फिर हुकूमत हो गई। आपको याद होगा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक़्त में हम लोगों ने पढ़ा ना कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मिस्र के बाज़ार में बेच दिए गए थे, और मिस्र में फिर वो फाइनली जो है कि उसी मिस्र में फिर जाकर करके जो है कि वो आपके उनको फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि जो है कि उनको खजांची बनाया गया, एक तरह से कह लीजिएगा बादशाह बन गए। तो फिर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरे कौम को, बनी इसराइल पूरे कौम को अपने यहाँ यानी कि मिस्र में बुला लिया था, यानी कि वो फिलिस्तीन से सारे मुसलमान जो थे, बनी इसराइल जो थे, आपके मिस्र में आ गए थे। मिस्र में फिर सब कुछ सेटल हो गए। अब फिर मिस्र में फिर वो वाक़यात जो गुजरा, फिरौन का वाक़यात गुजरा, और उसके बाद फिर यही मिस्र से फिर मूसा अलैहिस्सलाम वापस लेके निकले बनी इसराइल को। अब फिर फाइनली फिर उसी फिलिस्तीन में जाकर के सेटल हुए, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक़्त में हैकल सुलेमानी वगैरह जो है कि डेवलप हुआ, ठीक है ना। बहरहाल तवील इसके वाक़यात थे। तो अब जब बख्त नसर जब हमला किया, तो बख्त नसर का हमला करना और बनी इसराइल का शिकस्त होना, ये भी बनी इसराइल के अंदर इतनी ज़्यादा कमी आ जाने की वजह से हुई, वरना अल्लाह ने तो इनको इतनी बड़ी जो है कि क़ुव्वत दे रखी थी, बादशाहियत की। तो बख्त नसर जो है कि वही है कि जब आप बिगड़ेंगे तो आपके ऊपर जालिम बादशाह आ जाएगा, अल्लाह का तो वादा है। तो बख्त नसर जो आया, तो बख्त नसर क्या किया कि हैकल सुलेमानी को तो तोड़ फोड़ तबाह कर दिया। अब बनी इसराइल को जो है ना कि कैद कर दिया, सबको कैद कर दो, खत्म। इसी दौर में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का आना हुआ, समझ रहे ना। अच्छा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब उनके दिल में ये बात आया कि जब हम लोग मर जाएंगे और हमारी हड्डियां गल जाएंगी, खप जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर हम कैसे उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सुला दिया और 100 साल के बाद उठाया, और उनके सामने दिखाया कि देखो तुम्हारा गधा किस तरीके से उसकी हड्डी वड्डी सब गल चुकी है, मिट्टी हो चुकी है, देखो हम कैसे हम उसको उठाते हैं। अब वो खड़े आँख से देख रहे हैं कि उनके गधे को जो हड्डियाँ आई हैं, पसलियाँ बनी, और उसके ऊपर रगें आई, गोश्त आया, चमड़ा बना उठ के खड़ा हो गया। तो बहरहाल तो ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो आए, तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये क्या कहते हैं आपका बख्त नसर जिस वक़्त हमला किया है ना, तो हमला करने के बाद बनी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल चुकी थी, और ये वक़्त वही था कि जब वो सो गए थे। तो जो 100 साल वो सोए रहे, उसी दौर में बख्त नसर की हुकूमत रही, और तकरीबन कहते कि 60 से 70 साल जो है कि बख्त नसर जो है कि हुकूमत किया पूरे जो है कि बाबुल पर, पूरे फिलिस्तीन पर। और उसके बाद फिर इधर जो है कि आपका पर्शियन है ना, जो पर्शियन एम्पायर था, उसका बादशाह को अल्लाह ने ताकत दिया, और वो पर्शियन एम्पायर फिर जो है कि इस पर बाबुल पर अटैक किया और बख्त नसर को हुकूमत ख़त्म किया, और जो है कि पर्शियन एम्पायर का फिर हुकूमत हो गया। फिर पर्शियन जो है कि उन्होंने जो है कि बनी इसराइल को आज़ाद भी कराया, हैकल सुलेमानी की जो है कि उसमें दोबारा से जो है कि मरम्मत भी शुरू करवाई, है ना। अच्छा, अब इधर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का 100 साल का वक़्त जो ख़त्म हुआ, जब नींद से जागे, तो वो जब उठ करके आ रहे हैं अपने कौम के पास, तो इतना सब कुछ हो चुका था। लोग ज़बूर तो ख़त्म ही हो गई थी, तौरात भी भूल चुके थे, कोई तौरात को पढ़ने वाला नहीं था जनाब।